Friends, welcome in again study window by Dev sir. Today we learn class 6 chapter science for sorting material into groups. I am Devilal Bisnu, your science teacher. Uh, when we look around, we find all objects around us are made of one or more materials. The material from which an object is made depends on its properties. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. The material from which an object is made depends on its properties. Properties of materials. Uh, Appearance, hardness, transparent, these are the properties of materials. अ, बच्चों हम अपने अराउंड सम थिंग्स देखते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत से मटेरियल्स से चीजें बनी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं वहाँ। और जैसे कोई ग्लास से बना, कोई मेटल से, कोई प्लास्टिक से है, कोई लकड़ी से है, कोई कॉटन, पेपर, सॉइल से भी बने होते हैं। ये मटेरियल्स उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का मटेरियल है, और वो जो प्रॉपर्टीज है वो होती है अपीयरेंस। एक तो materials can be classified on the basis of how they look or appear to be. Some materials have a very gentle sheen or soft glow, and while other are plain and dull looking. Materials are usually look different from each other. उसको हम देख करके भी बता सकते हैं अपीयरेंस के द्वारा कि वो किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, उस आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ चमकदार हो सकते हैं और खुरदरे हो सकते हैं, और कुछ सॉफ्ट हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं, और सभी मटेरियल्स एक दूसरे से अलग होते हैं। हार्डनेस, मटेरियल्स कैन also be classified on the basis of hardness. Materials that can be easily compressed are called soft, and materials that are difficult to compress are termed as hard. हार्डनेस के आधार पर मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं अपने। जैसे कुछ चीजें दबाने पर दब जाती है, वो सॉफ्ट कहलाती है, कुछ नहीं दब पाती, उनको हार्ड कह देते हैं। Soluble or insoluble, material that can be dissolved in water upon stirring are said to be soluble materials. For example, sugar and salt can be dissolved in water. Materials that cannot be dissolved in water, no matter how much we stir them, are said to be insoluble materials. For example, stones and clothes cannot be dissolved in water. Not just solid materials, even liquid have the property of being soluble or insoluble. For example, lemon juice can easily dissolve in water, while oil does not dissolve and deposit as a thin layer on the uppermost layer of water. थर्ड प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। बहुत से मटेरियल होते हैं जिनको यदि हम उनको घोलते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, तो वो उसके अंदर घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर। और बहुत से ऐसे मटेरियल है जिनको आप कितनी देर डिजोल्व करो वो कोई मैटर नहीं है, वो उसके अंदर नहीं, जैसे स्टोन्स है, क्लॉथ्स है, कुछ चीजें होती है वो नहीं इसमें डिजोल्व होती है। सिर्फ सॉलिड ही नहीं, लिक्विड भी डिजोल्व हो सकते हैं और सोल्यूबल हो सकते हैं। जैसे लेमन जूस है, आप स्कंजी बनाते हो तो वो घुल जाता है वाटर में, लेकिन यदि उसके ऊपर ऑयल या आपका घी गिर जाता है वाटर के ऊपर तो वो एक थिन लेयर बना लेगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं। ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट मटेरियल which can be seen through are said to be transparent objects. For example, glass, clear water, and some plastics can be seen through and are hence transparent materials. Objects and materials through which things can be seen but only partially are called
translucent objects. Butter paper and forced glass are some example of translucent objects. Objects which cannot be seen through are known as opaque objects. For example, metal, food and cardboard are some example of opaque materials as you cannot see through them. ट्रांसपेरेंसी के आधार पर फोर्थ प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, उनके आर पार आप देख सकते हो, जैसे ग्लास से साफ पानी है, कुछ प्लास्टिक जैसे बोटल्स वगैरह उनके अंदर से। लेकिन ये ट्रांसलूसेंट जो होते हैं उनके अंदर आप पूरा सही तरीके से क्लियर नहीं देख पाते हो, जैसे बटर पेपर वगैरह होता है, हमें ये तो पता था उस साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं पहचान सकते। ओपेक्यू है, ये क्या है, इसके अंदर आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स की कोई शीट है, वहां से आप उसको नहीं देख सकते हो। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर्स। There are some insoluble objects or materials which sink to the bottom of the surface when dissolved in water, while some other float on the surface of the water. For example, leaves and corks float in water while rocks and coins sink in water. फिफ्थ प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं, कुछ डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ये यहाँ पर हम देखें कुछ पत्ते वगैरह, कॉक वगैरह है, लीव्स है, वो यहाँ पर फ्लोट करेगी, लेकिन कुछ कॉइन्स है, कीज है और स्टोन्स है वो नीचे सिंक हो जाते हैं। अब why do we need to group materials? For below reasons we need to group materials. Conventions to store. We often group objects in order to store similar objects together in order to make locating them easier in the future. Even in our homes, we store spice together in the kitchen while storing washing products in our bathrooms. Convenience to study. We also group objects so that it becomes easy for us to study their features as well as the patterns of these features. स्टूडेंट्स अपने को क्या नीड होती है कि मटेरियल्स का ग्रुप बनाए, तो ये दो रीजंस है। एक तो स्टोर करने के लिए, अपने एक जैसे ऑब्जेक्ट्स है ग्रुप वाले उनको एक जगह स्टोर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो घर के अंदर स्पाइसेस होते हैं या अपने फूड मटेरियल होते हैं उनको अपने किचन के अंदर रखते हैं। दूसरा जो वॉशिंग मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं उनको सबको अपने बाथरूम में रखते हैं ताकि उनको लोकेट करना भी इजी हो सकता है, यूज करना भी इजी हो सकता है। और स्टडी के लिए भी करते हैं अपने कि ग्रुप ऑब्जेक्ट्स होगा तो उसको एक साथ स्टडी की सकते हैं, एक जैसी उनके अंदर फीचर्स होगी, एक जैसा उनके अंदर पैटर्न्स होगा, तो उनको आसानी से स्टडी की जा सकती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग वीडियो। अब आप इसे अच्छी तरह पढ़ना और क्वेश्चन आंसर करके और जो डिसाइड है उस दिन स्कूल के अंदर दिखाने का कष्ट जरूर करें। अगेन थैंक्स।